برادران محترم، آج میں آپ کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند جھلکیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ذہنشین کر لیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اسم گرامی عبداللہ تھا، جن کے والد محترم کا نام عثمان ابو قحافہ تھا، جن کے دادا کا نام عامر تھا، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، اور ساتویں پشت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑتا ہے۔ اور پھر ساتویں پشت سے جب یہ جڑتا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر ختم ہوتا ہے۔ مکی اور قریشی ہونے کے ساتھ بچپن سے ہی سلیم الفطرت تھے۔ بڑے دعوے کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام سے قبل زمانہ جہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، اور کبھی اس زمانہ جہلیت میں بھی شراب نہیں پی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال تقریباً چھوٹے تھے، لیکن جوانی میں محبت کا مرکز اور دوستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکی تھی۔ ایک دیوانہ وار مستانہ عاشق کی طرح سے قریش مکہ اس جوڑی کو دیکھتے تھے کہ کس طرح جبکہ 40 سال سے قبل کا آپ کا دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی اس وقت آپ تمام انسانوں کی محبت کا مرکز یوں تھے کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا تھا، لیکن صداقت اور امانت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، اپنے اوصاف کی وجہ سے تمام انسانوں کی محبت کا مرکز تھے۔ مگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ 14ویں کا چاند فضا میں ٹوٹ کر 4 ٹکڑے اس کے کعبہ میں گرتی، اس کے بعد اس کے دیگر ٹکڑے مکہ کے ہر گھر میں گرتی، پھر وہی 14ویں کا چاند فضا میں اکٹھا ہوتا ہے اور سارا کا سارا ابوبکر صدیق کے گھر میں آ جاتا ہے۔ یوں ہی بیداری ہوئی اس وقت کے تعبیر دینے والوں کے پاس،
18 سال کی عمر میں اس خواب کو بیان کرتے ہوئے تعبیر مانگتے ہیں کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ اس وقت کے راہب کو جا کر ملتے ہیں، بحیرہ راہب کو، سفر کرتے ہیں شام کا۔ لمبا سفر کرنے کے بعد بحیرہ راہب جو کہ اس وقت بہت بڑا اپنی آسمانی کتابوں کا امین تھا، اس کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر خواب جب بتاتے ہیں تو وہ تعبیر میں یہ کہتے ہیں کہ نوجوان تجھے مبارک ہو کہ آخر الزمان پیغمبر آنے والا ہے اور تو اس کا جانثار بنے گا۔ بس اس وقت سے ان اوصاف کو نظروں میں اس سے صفتیں لے آئے۔ کیا اس کی صفتیں ہوں گی؟ سچائی میں اس کا نام ہوگا کہ لوگ اسے صادق کہیں گے، امانت داری میں اس کا نام چمکے گا کہ لوگ اسے امین کہیں گے۔ جو ہی یہ سارے اوصاف دیکھتے گئے، ہر دن انتظار میں رہتے تھے، روزانہ ملاقات کرتے تھے، دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے۔ قریشی دیکھ کے حیران ہو جاتے تھے کہ ہم عمر ہونے کے ساتھ بھی ایک قدم نیچے بیٹھ کر دو زانو ہو کر یہ نوجوان کس چیز کے انتظار میں ہے؟ اس انتظار میں تھے کہ اس خواب کی تعبیر میں کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کریں اور میں پہلا مسلمان ہو جاؤں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تاریخ شاہد ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ خبر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کی، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آپ کی زوجہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں۔ میں تاریخ کہ اور اس میں نہیں جانا چاہتا کہ کب شادی ہوئی، کتنے بچے ہوئے، یہ سب میں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ تاریخ مدینہ کے ساتھ تاریخ مکہ کو پورا پیش کروں گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب یہ خبر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے چچا زاد بھائی کو دی کہ میرے سرتاج کے پاس جبریل آیا ہے اور اس نے وحی کر کے آپ کے سر پر تاج نبوت رکھ دیا ہے، ابو بکر صدیق کو یہ خبر خدیجۃ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی نے دی تو دوڑے دوڑے آئے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ ڈھونڈیں بلکہ میں جا کے پوچھ لوں کہ کیا حال ہے۔ یہ ایک واقعہ عظیم الشان یہ ہے کہ حضور کے دروازے پر دستک دی، جو ہی دروازہ کھلا تو سب سے پہلے زباں پہ یہ لائے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو نبی پر حق مانتا ہوں۔ کہ اللہ اکبر، زور سے پھر نعرہ لگاؤ، اور زور سے لگاؤ تاکہ آواز۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ شرف کی بات ہے کہ مردوں میں آزاد اپنی تجارت بھی کرتے تھے۔ 6 دکانیں کپڑوں کی تھیں، تاجر تھے۔ اور پھر میرے دوستوں جب ایمان لائے تو 40,000 درہم اپنے پاس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اب میرا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا جو میرا کام ہے وہ تیرا کام ہے۔ کون سا؟ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ میرے دوستو، ایمان لائے اور یہ شرف حاصل ہوا کہ چل کر آئے، انتظار میں تھے، اور جب خبر ملی تو خبر کسی اور سے ملی، ایمان اور کلمہ پہلے پڑھ لیا۔ میرے دوستو، میں کیسے شان صدیق اکبر کو پیش کروں؟ تو اس کے بعد اسی وقت نکلتے ہیں، عثمان کے گھر کو دستک دیتے ہیں، اس کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، زبیر کے گھر پہ جاتے ہیں،
اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں جاتے ہیں, اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں. سعد بن وقاص کے گھر میں جاتے ہیں, اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اور دوسرے دن ان 6 نوجوانوں کو رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تکبیر. میں آپ کو, یہ موضوع بہت لمبا ہے, بہت لمبا ہے. اتنا عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لانے کے بعد صدیق اکبر نے جو پونجی رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی, عشرہ مبشرہ میں اللہ کے پیارے نبی نے یہ فیصلہ کر دیا, ابو بکر جو تیرے ہاتھ پہ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کر چکا ہے, اب جتنے کائنات میں میرے امتی آئیں گے ان 10 میں یہ شمار ہوگا, اور ان کا نام ہے عشرہ مبشرہ. تکبیر. ابو بکر فی الجنہ, عمر ایمان لانے میں 40ویں نمبر پر تھے, اس میں کوئی شک نہیں, مقام میں دوسرے نمبر پر تھے. عمر فی الجنہ. عثمان ایمان لائے تو صدیق اکبر کی دعوت پر ایمان لائے. عثمان فی الجنہ. علی ایمان لائے, اس وقت ان کی عمر 8.5 سال تھی. میرے دوستو 2 سال کے تھے حضرت علی مرتضیٰ. ابو طالب جو کہ آپ کے چچا تھے وہ صاحب اسرت تھے, اس وقت قحط کا زمانہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فراوانی حضور کی اپنی برکت کے ساتھ تھی. الم یجد کا یتیما فآویٰ, اس نے یتیم تو پیدا کیا مگر پرورش اپنے ذمہ لے لی. کس نے ذمہ لی؟ میرے دوستو, اگر مریم کو محراب میں رزق کھلایا جا سکتا ہے تو ہمارے رسول کو وہ مقام ملا تھا کہ خود ابو طالب کہتے ہیں کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے تھے ہم کھانا نہیں کھولتے تھے. حضور جب دسترخوان پہ ہوتے تھے تھوڑا کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا. کون کھلاتا تھا؟ صدیق اکبر ایمان لائے, اس وقت 38 سال کی عمر تھی. میرے دوستو, سب سے پہلا مرد جس نے ایمان لایا اس کا نام کیا ہے؟ تو صدیق اکبر. میرے دوستو اور بزرگوں, اور سب سے پہلا شاگرد جو رسول اللہ کے مدرسے میں تھا اس کا نام بھی کیا ہے؟ زور سے کہہ دو. اور سب سے پہلا مقتدی مردوں میں جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. میرے دوستو, یہ باقاعدہ یہ بات ہے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ہم 2 عورتیں ہوا کرتی تھیں, ایک مرد ہوا کرتا تھا, ایک امام ہوا کرتا تھا, اور گھر میں نماز ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے, صدیق اکبر پیچھے کھڑے ہوتے تھے, ان کے پیچھے خدیجۃ الکبریٰ کھڑی ہوتی تھیں, ام ایمن کھڑی ہوتی تھیں. میرے دوستو اور بزرگوں, میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان حضرت زید لائے, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. بچوں میں علی مرتضیٰ ایمان لائے, غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے, اور عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں. اور مردوں میں, آزاد مردوں میں ایمان لانے والے کا نام کیا ہے بتاؤ؟ عبداللہ ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں, نام عبداللہ جب رکھا گیا تھا اس وقت کا واقعہ یہ ہے کہ ماں نے جس وقت جنم دیا تھا آسمانوں سے ایک آواز پائی تھی کہ یہ بچہ وہ ہوگا جو ایک نبی کی تصدیق کرے گا اور مقام میں صدیق کا خطاب پائے گا. نعرہ تکبیر. بڑے دعوے کے ساتھ بتا رہا ہوں, بہت دعوے کے ساتھ بتا رہا ہوں. باپ نے انگل پکڑی, بیٹا اب چلنے پھرنے کے قابل ہے. ابو قحافہ عثمان اپنے بیٹے کو پکڑ کر کعبہ میں لے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں ابا یہ کیا ہیں؟ نے کہا یہ بت ہمارے خدا ہیں. اس نے کہا نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. وہی جواب دیا جو کہ ابو الانبیاء نے دیا تھا. کہا کہ ابراہیم نے جواب جو دیا تھا یہ زبان پہ یہ جواب اس بچے صدیق ابو بکر کی زبان پہ کون لایا تھا؟ میرے دوستو, ہاتھ میں فوراً اسی وقت, کیونکہ اب تک بھی یہ فرش تو اب بنے ہیں,
सन 1960 से पहले तक मक्का मुकरमा में जाने वालों को पता है कि तवाफ करते हुए अंग्रेजों के ऊपर तवाफ होता था, वहां कंकरियां पड़ी होती थी। मेरे दोस्तों, सिद्दीक अकबर ने छोटा सा पत्थर उठाया, उसने कहा ये भी पत्थर है, वो भी पत्थर है, पत्थर को पत्थर का निशाना बनाता हूं। तो अल्लाह अकबर। बात फैली, मां तक पहुंची। मां ने कहा, अबू कुहाफा तुम क्यों सोच रहे हो, मैं तुम्हें बताती नहीं थी, जब ये मेरे पेट में था तो मुझे कई ख्वाब नजर आया करते थे। मेरे दोस्तों, ये एक ताल्लुक लिंक को बता रहा हूं कि अगर आमना से सरताज दो आलम की बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं, तो हजूर के दोस्तों की शान भी अल्लाह ने ऐसी बयान कर दी है। इसलिए जहां देखो सिद्दीक अकबर आपको नजर आएंगे। फिर जब ईमान लाए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इस दीन हक के लिए आपने मार खाई, सिर्फ मार नहीं खाई, इतनी मार खाई कि चेहरे मुबारक पर जब देखा कि सांस खत्म हो चुका है, कुरैश मक्का मुशरिकीन मक्का ने थूका भी। मैं पिछले जुमे आपको बता चुका हूं कि जब मां सराहने बैठकर दूध का प्याला लेकर बैठी थी कि होश आए कि बच्चा दूध पी ले, होश आया तो जुबान पे क्या था कि मेरे महबूब का क्या हाल है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं कैसे बताऊं जिसको अतीक का खिताब मिला, और अतीक ये जमीन पर वो खिताब था जो सिद्दीक अकबर की खूबसूरती पर भी था। दोनों यार जब इकट्ठे चलते थे कैसी रौनक होती होगी। एक चांद है, दूसरा सितारा है, वो चमकता हुआ चांद है, ये उभरता हुआ सितारा है। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लम को अबू बकर को देखकर ये कहना पड़ता था, अंत रफीकुम फिल गार, तू मेरा गार का भी साथी, हौज का भी साथी, मज़ार का भी साथी और जन्नत का भी साथी रहेगा। तकबीर। मेरे दोस्तों, इस बात को हम जानते हैं कि जिसने ईमान की नजर से रसूलुल्लाह को देख लिया, उस पर जहन्नम की आग हराम हो गई। जिसने उस देखने वाले को देख लिया, उस पर जहन्नम की आग हराम हो गई। सिद्दीक के बारे में अगर पूछना चाहते हो कि वो कौन है, सिद्दीक वो है जिसको ईमान की नजर से देखने पर जन्नत वाजिब हो जाती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हर एक की अपनी ख्वाहिश हुआ करती है। पूछने वाले पूछते हैं किसी से दुनिया में ख्वाहिश बताओ। कोई कहता है मेरा बैंक बैलेंस हो जाए, कोई कहता है मैं बड़ा ताजिर बन जाऊं, कोई कहता है मैं बादशाह वक्त बन जाऊं। बहुत लोग सियासतदान उम्रा भी इसलिए करते हैं कि वहां जाकर ये मांगते हैं कि हमें वजीर आजम बना दिया जाए। हर एक की अपनी ख्वाहिश होती है। मेरे दोस्तों, बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, यहां मेहराब में खड़े होकर कह रहा हूं, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब भी कोई सहाबी पूछता था दुनिया में तेरी क्या ख्वाहिश है, तो जवाब ये कहते थे, अन-नज़्र अला वजह रसूलिल्लाह, मेरी आंख और चेहरा नबी का हो। कहो अल्लाह अकबर। एक ख्वाहिश रखते थे कि मेरी नजर हो, रसूल का चेहरा हो, नबी का चमकता हुआ चेहरा हो। मेरे दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि सिद्दीक का मेरे साथ कितना प्यार है, उसको कितनी मेरे साथ मोहब्बत है। मैं कुछ आगे जाके बता देना चाहता हूं, मदीने में आपको पहुंचाता हूं। जब मस्जिद नबवी की तरफ से सारे दरवाजे जो जिसके थे, हजूर ने फरमाया अब मस्जिद की वुसअत हमने करनी है, मस्जिद के अंदर दरवाजे जिसके हैं सब बंद कर लें, सिवाय सिद्दीक अकबर के दरवाजे के सारे दरवाजे बंद। किसका दरवाजा खुला रहा? मेरे दोस्तों, ये अंसार और महाजरीन की तारीख में ये बात है कि जब घर में भी जाते थे तो हुजरा मुबारक के दरवाजे को देखते रहते थे। खिड़की वो बिल्कुल सामने थी। मस्जिद नबवी में जाओ, आज भी उन पिलरों पर लिखा हुआ है कि ये सिद्दीक अकबर का घर यहाँ से शुरू होता है। उन पिलरों पर ये लिखा हुआ है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद की हद थी। उसमें साफ लिखा हुआ है घर जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। मैं जब भी मदीने में जाता हूँ, उस पिलर के पास बैठकर जब मैं नजर करता हूँ रोज़े अक़दस में हजूर के हुजरे के उस दरवाजे की तरफ, तो सिद्दीक की उस अदा को कि किस तरह वो इंतजार में अपनी आंखों को निशावर किया करते थे। अज़ान से पहले सब बंदी में आ जाते थे।
हुजरे में चादर मुबारक हिलती नहीं थी कि नजरें पहले से टिकी होती थीं। हजूर नमाज पढ़ाते थे, सिद्दीक दाएं तरफ पहले खड़ा होता था। इसके साथ नमाज खत्म होती थी, खुतबा होता था। सिद्दीक अपनी निगाहों को जमा के टिकटिकी बांध के देखा करते थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख ने इस बात की शहादत दी है, हजूर जब आते थे तो निगाह सिद्दीक की इस्तकबाल में पहले होती थी। जब घर जाते थे तो सिद्दीक हुजरे के अंदर दाखिल करके अपने घर चला करते थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस अबू बकर सिद्दीक के बारे में मैं कैसे बताऊं उनका क्या मकाम है। मुझे वक्त की नजाकत का भी एहसास होता है, आपकी औकात कार का भी एहसास होता है। मैं कैसे बताऊं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए और वापस आए, और वो वाक़या आप जानते हैं कि सातों आसमानों से ऊपर अर्श मुअल्ला तक गए, सिदरा से ऊपर गए, वापस आए। वक्त की लगाम को किसने थाम रखा था? जब वापस आए और उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि मैं रात के एक हिस्से में बेदारी की हालत में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया हूँ, मस्जिद अक्सा से सातों आसमान गया हूँ, उससे ऊपर सिदरा गया हूँ और तशरीफुल अक़लाम को देखा है, टिक टिक की आवाजें सुनी हैं, सब्ज मस्जिद में बैठा हूँ, रफ रफ पर सवारी की है, जहाँ जिब्रील की इंतहा थी वहाँ मुस्तफा का आगाज था। और वे सारा सफर बताया, और बताने के बाद कहो अल्लाह अकबर। सारा सफर बताने के बाद काना काबा का हुसैन अवदना, जहां पर अब कोई हिजाब नहीं थे, 70,000 हिजाबात के पर्दे हट चुके थे। एक मुहिब और एक महबूब था, एक अब्द और एक माबूद था। मेरे दोस्तों, रात नियाज की गुफ्तगू थी, ये सफर था, अजीम सफर था, इसका जिक्र कुरान पाक में है। वापस आए, बताया तो अबू जहल ने समझा आज ये वक्त है कि अबू बकर को फिसला दूंगा, क्योंकि जब आए तो गुफ्तगू जब फरमाई अबू बकर नहीं थे। दौड़ा दौड़ा अबू जहल अबू बकर सिद्दीक की दस्तक देता है घर की। जब सिद्दीक अकबर निकलते हैं, अभी अबू बकर उनका नाम है, जो ही दरवाजा खोलते हैं, अबू जहल कहता है क्या ये अकल मान सकती है कि एक शख्स रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाए, आसमानों पर जाए, अर्श पर जाए, वापस लौटे और वक्त में कोई तगय्युर तबद्दुल ना हो। सिद्दीक ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में फरमाया, अबू जहल अगर बात तेरी है, रिवायत तेरी है और ये मंसूब मेरे रसूल की तरफ है, तो तेरी खबर पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मंसूब मेरे रसूल की है तो सुन ले मेरी बात कि जो जिब्रील आसमान से जमीन पर रसूलुल्लाह की खिदमत में आ सकता है, मेरा रसूल अल्लाह के पास मुलाकात के लिए भी आसान होगा। दावे से कह रहा हूं, अभी रसूलुल्लाह की जुबान से ये बात नहीं सुनी थी कि किस बात की तस्दीक की, मेराज की तस्दीक कर दी। जो ही तस्दीक की, जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुए, फरमाया ए नबी क्यों घबराते हो, हमने तस्दीक करा दी है। जब अबू बकर आए तो आप अपनी जुबान से उसे आसमान का वो ताज पहना दें कि हमने अंबिया के बाद सबसे ऊंचा मकाम सिद्दीक का जो दिया है, इस तस्दीक पर आज के बाद अबू बकर सिद्दीक अकबर हैं। सिद्दीक अकबर की शान बताऊं मेरे दोस्तों, अब वाकया लंबा हो जाएगा। फिर जब आए फरमाया आप बताइए या रसूलुल्लाह कैसे गए। हजूर फरमाते जाते थे, पर अबू बकर क्या कहते जाते थे, सच फरमाया। क्या फरमाया? सच फरमाया। हजूर कैसे आप मस्जिद अक्सा गए, अब सारे बैठे हैं मुशरिकीन। हजूर फरमाते थे बुराक पर गया, फरमाया सच फरमाया। वहां क्या हुआ, इमामत कराई, किसकी, आदम से ईसा रूहुल्लाह तक। कौन लाया, अल्लाह लाया। कौन ले गया, अल्लाह ले गया। सच फरमाया। मेरे दोस्तों ये अदा थी। जब ये बात देखी अबू जहल ने कि ये तो ज्यादा और मजीद ईमान बढ़ गया, तो उसने कहा छोड़ो दलील मांगता हूं, अगर रात को सफर में गए हो तो फिर बताओ कि उसकी कितनी खिड़कियां थी, कितने दरवाजे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह नीचे की, जिब्रील अमीन आ गया और उसने ये अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
घबराने की बात नहीं है। जो रब आपको मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जा सकता है, वो मस्जिद अक्सा को आपके सामने भी ला सकता है। मैं यहाँ इस वाक़े को छोड़ता हूँ, आगे चलो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। जब दारे अरकम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब इब्तदा में दावा नबूवत किया, तो पहले नंबर पर किसकी मर्दों में कौन था? बोलो। सिद्दीक़ अकबर थे। मेराज की तस्दीक किसने की? सिद्दीक़ अकबर ने की। दारे अरकम में जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, 45 सहाबा ईमान ला चुके थे। जब शैब अबी तालिब में थे, 82 मुसलमान हो चुके थे। जब हिजरत का हुक्म किया, तुम्हें तारीख बताना चाहता हूं, महाजरीन की कितनी तादाद है? 115 महाजरीन हैं, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। मक्का से हिजरत करने वाले सहाबा की तादाद कितनी थी? 115। जा रहे हैं, किसके हुक्म पर जा रहे हैं? और रसूलुल्लाह खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, उमर तुम चले जाओ, फलां तुम चले जाओ, फलां तुम चले जाओ। अबू बकर सिद्दीक इंतजार में थे कि मुझे कब कहते हैं। एक दफा इसी वजह से कि मैं ये मालूम कर सकूं कि हजूर कब जाएंगे, कहा मेरी बारी कब आएगी। आपने फरमाया जिस दिन मुझे हुक्म होगा तुझे भी उसी दिन होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिर बताऊं कि हिजरत की उस रात से पहले जोहर के वक्त, जोहर की नमाज के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के घर में जाते हैं। फरमाते हैं मेरे पास जिब्रील आया है, उसने मुझे बता दिया है कि आज रात मेरे घर का मुहासरा होगा। एक बात नुक्ते की बताना चाहता हूँ, बड़े दावे के साथ। तबकात इब्ने साद उठाओ, अल बदाया वन नहाया उठाओ, इब्ने कसीर की तारीख उठाओ, तमाम सीरत का मुताला करो। हजूर जब तशरीफ ले गए सिद्दीक अकबर के घर में, तो आपने फरमाया अबू बकर एक राज की बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसलिए घर को देख लो कि मौजूद होना बेहतर है या नहीं। अबू बकर ने जवाब में कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मैं हूं वैसे मेरी औलाद भी आप पर निछावर है, आप बात कीजिए और हमें आजमा लीजिए। दोपहर को यह खबर दी कि आज रात मुझे और तुझे हिजरत का हुक्म है। इस खबर को बच्चों ने सुना, आयशा ने सुना, अस्मा ने सुना, अब्दुर्रहमान ने सुना, हजरत अबू बकर सिद्दीक के आमिर बिन फुहैरा जो कि आपके गुलाम थे उसने सुना। यहाँ एतमाद की बात कर रहा हूँ, चल कर गए घर पर, यह खबर राज की देना चाहिए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक पर जैसे एतमाद था ऐसे अबू बकर के बेटों पर भी एतमाद था, बेटियों पर भी एतमाद था, हत्ता कि सिद्दीक अकबर के गुलाम पर भी एतमाद था कि ये बात नहीं निकालेंगे, ये बात नहीं निकालेंगे। 100 ऊंटों का ऐलान हो चुका था। मेरे दोस्तों, अब सिद्दीक अकबर इंतजार में हैं, वो रात आएगी मैं साथ चलूंगा। बेटियों से कह रहे हैं रोजाना ताजा खाना तुमने पहुंचाना होगा। पहले प्लानिंग अब आने के बाद हम करेंगे कि कहां हमने पहली मंजिल गुजारनी है। हजूर तशरीफ लाए, कैसे आए वो हिजरत का वाकया लंबा है, मैं सिर्फ झलकियां सिद्दीक अकबर की देना चाहता हूं। जब घर पे पहुंचे, रात के अंधेरे में आए, जब अंदर दाखिल हुए, फरमाया सिद्दीक अकबर ने कि अब क्या होगा। कहा कि गारे सौर में रहेंगे। अब इसकी खबर अबू बकर अपनी बेटी को दे रहे हैं, गुलाम को दे रहे हैं। हमने कितने दिन रहना है या रसूलल्लाह? आपने फरमाया 3 दिन रहना है। गुलाम सुन ले, 3 दिन तक ताजा बकरी का दूध वहां गार तक तूने पहुंचाना है। बेटी सुन लो, अच्छा सा खाना बनाकर रात के अंधेरे में उस पहाड़ी की चोटी पर उस गार तक पहुंचाना है। मेरे दोस्तों, फिर मैं क्या बताऊं, यहां एक खास बात बताना चाहता हूं। जब घर से निकले तो अली मुर्तजा को अपने बिस्तर पर लिटाया और क्या मानते थी, रसूल के पास जो मानते थी लोगों की, वो उसके सपुर्द कर दी। और जब सिद्दीक के पास आए तो मेरे दोस्तों, यहां तकाबल नहीं, मैं आपको बड़े बेहतरीन अंदाज में इसका एक हुस्न बताना चाहता हूं। सिद्दीक के पास और हजरत अली मुर्तजा के पास रसूलुल्लाह की अमानतें थी और सिद्दीक के पास अल्लाह की अमानत आ गई। किसकी अमानत आ गई? अल्लाह की अमानत आ गई। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अली मुर्तजा उस चारपाई पर सो गए। अली मुर्तजा का भी एक मकाम था, मगर अबू बकर का मकाम देखो कि अब जब पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, अंधेरा है, अब मेरे कंधों पे सवार हो जाएं। यहां सवारी
अबू बकर थे और सवार रसूलुल्लाह थे, इसमें कोई शक नहीं कि मदीने की गलियों में वो सवार और सवारी का मंजर भी लोगों ने देखा कि जहां सवारी रसूलुल्लाह सल्लम थी और हसन और हुसैन कंधों पे बैठा करते थे, यहाँ ये हुस्न देखो कि यहाँ सवारी कौन है? अबू बकर हैं। जिनके कंधों पे सवार कौन है? रसूलुल्लाह हैं। जब गार के दहाने पहुंचते हैं मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अब एक चादर वो है जो अबू बकर उसके टुकड़े करते हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लम रुक जाइए, रात का अंधेरा है, मैं पहले गार में जाऊंगा। पहले नंबर पे किस लिए गए कि सफाई करते हैं, उसमें हाथों से हाथ फेरते हैं, कहीं छोटा सा सुराख मिलता है, वहां चादर को काट के उसके अंदर दाखिल कर देते हैं। सारी चादर के टुकड़ों को उन गारों पर सुराखों में बंद करते चले जाते हैं। छोटी सी वो गार होती है, उसमें बैठ जाते हैं, क्योंकि एक सोच सकता है उसमें किस तरह से, किस अंदाज से अब उनको लेना था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ कैसे बताऊं आपको कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जिस वक्त सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कि गार के अंदर पहुंच गए और अपने जो है लंबे कर दिए, बिस्तर बना दिया अपनी गोद को। क्या बना दिया? अपनी गोद को बिस्तर बना दिया। और बिस्तर बनाने के बाद मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लम को अंदर बुलाया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक कहाँ रख दिया? अबू बकर की गोद में। अब अबू बकर जाग रहे हैं। अबू बकर की नजरों में कौन है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मकाम में अगर बात करते हो, मैं ये साबित कर सकता हूं, जिसको अल्लाह के नबी ने पहला नंबर दे दिया है, सारी दुनिया के मलंग खड़े हो जाएं, वो हजरत अबू बकर के पहले नंबर को नहीं छीन सकते हैं। मेरे दोस्तों, फिर एक सुराख रह गया था, वहां अपना पांव मुबारक उस सुराख पर रख दिया। क्यों? कि कहीं कोई चीज वहां से न निकल कर नुकसान न दे दे। उधर निगाहों की टिकटिकी बांधी हुई है, किस चेहरे? अथर पर। हजूर नींद में हो गए तो अंदलहुस सकीना, कुरान में फरमाया अल्लाह ने, हमने सकीना नाज़िल फरमा दी। वो 3 दिन और 3 रात का कितना खूबसूरत पीरियड था कि जिसमें सिद्दीक की गोद थी, रसूलुल्लाह का सर मुबारक था। इस दौरान में ताजा बकरी का दूध भी आता था, बेटी खाना पहुंचा जाती थी, बेटा खबर दे जाता था। ये कहा जाता था हमारी बालियां टूट गईं, चेहरे पर तमाचे लगे, मगर सिद्दीक की बेटी ने यह नहीं बताया कि कहां है सिद्दीक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये कैसे बताऊं? उस गुलाम को लालच ना आया कि 100 ऊंट मुझे मिलेंगे। वो रोजाना दूध पहुंचाता था, 2 ऊंटनियां तैयार कर रखी थी, उसके बाद उन्हीं पर रवाना होना था। मैं लंबे चौड़े वाक़े में नहीं जाना चाहता, मुख्तसरन आपको बताना चाहता हूं कि जब पांव मुबारक जहां जिस सुराख पे रखा हुआ था, वहां किस चीज ने डसा था? किस चीज ने? फिर कहो किस चीज ने? सांप इंसान का दोस्त है या दुश्मन? आज भी जो सिद्दीक को डसते हैं वो इंसानों के भी दुश्मन है। वो सांप ने, वो काला डसने वाला सांप जिसने डसा था, तो हजरत सिद्दीक अकबर की टांगों में लग़्ज़िश नहीं आई, जहर को अपनी आंखों तक ले लिया, मगर गोद में जो यार का सर है उसकी नींद में खलल ना आने दिया। कहा कि अगर मैंने टांग हिला दी तो मेरे यार की नींद में खलल ना आ जाए। अब वो असर गया, आंखों से सुर्ख यानी खून की तरह से, यानी गर्म आंसू जब रसूलुल्लाह के चेहरे अथर पर गिरे। मालका या अबा बकर, अबू बकर इतने गर्म तेरे आंसू हैं, क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लम आप बेदार हो गए, किसी चीज ने डस दिया है। तो मैं किस जगह पर? कहा पांव पर। हजूर ने अपने लुआब लगाए। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं तमाम गज़वात में शिरकत की है, कभी पांव में थकावट नहीं आई। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो जहर का असर किसने खत्म कराया? लेकिन किसके लुआब से? हाँ मेरे दोस्तों, बताऊं आपको, एक दफा रसूलुल्लाह सल्लम तशरीफ फरमाते, ऐशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लम उमर का क्या मकाम है? आपने फरमाया उमर का मकाम ऐसा है कि आसमान पर इतने चमकते हुए सितारे नहीं जितनी उमर की नेकियां हैं। कहा कि फिर मेरे बाप का क्या मकाम है? फरमाया कि तू क्यों ताज्जुब से पूछती है? तेरे बाप का मकाम वो है जो 3 दिन 3 रात जिनकी गोद में मेरा सर था,
उमर की सारी उम्र की इबादत एक तरफ, अबू बकर की 3 दिन की गोद एक तरफ। उमर से पूछा जाता था तू बहुत नेक है, तेरे बारे में रसूलुल्लाह ने पेशन गोई की है। वो कहते हैं काश कि अबू बकर सिर्फ एक दिन मुझे वो हिजरत की रात का दे दे, मैं अपनी उम्र की भर की इबादत देने के लिए तैयार हूं। उमर की इबादत देने के लिए तैयार है। अबू बकर का मकाम देखो, जहां गोद अबू बकर की थी और सर किसका था? फिर आइए इस बात, किसका सर था? सर अक़दस नबी था, चेहरा खिल रहा था। नजरें अबू बकर की किस पर थी? हज़रत ने फरमाया मैं भी बड़ा वफादार हूं, अगर तुम जानिसार हो कि वफादारी करते हो तो वफादारी सुन लो। अंत रफीकी फी गार, अंत रफीकी फिल कब्र, वहां तू मेरे मज़ार में भी मेरा साथी होगा, जन्नत में भी मेरा साथी होगा। और कैसे? फरमाया अगर 3 दिन और 3 रात तेरी गोद थी और मेरा सर था, क़यामत तक मेरी गोद होगी और तेरा सर होगा। जैसे यहां सांप ने डसा और अल्लाह ने तुझे मेरे लुआब से शिफा दी, अब सारी दुनिया भी अगर तेरी मुखालिफ हो जाए, उस रोज़े अक़दस से तुझे कोई नहीं निकाल सकेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सिद्दीक़ अकबर की क्या शान है, जिन्होंने 60 गुलामों को आजाद करवाया, हजूर की गुलामी में भेज दिया। हजरत बिलाल को किसने आजाद करवाया? सिद्दीक ने आजाद करवाया। जिनको रातों को कोड़े मारे जाते थे, सिद्दीक को पता चलता था कि गुलाम को मारा जा रहा है, उसके आका के पास जाते थे, पूछते थे कितनी कीमत है तेरी इस शख्स की? कहता इतनी है, वो ज्यादा बताता, सिद्दीक अदा कर देते, उसको हजूर की गुलामी में पेश कर देते थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सिद्दीक की बाबत में कुरान की 7 आयात ऐसी हैं जो शान सिद्दीक़ अकबर पर नाज़िल हुई हैं। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, सहाबियत की मोहर अगर किसी को इस दुनिया में कुरान में मिली है तो कुरान पाक में सिद्दीक़ अकबर को मिली है। सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। लोग कहते हैं अबू बकर उस वक्त अपनी जान पर खौफ खा रहे थे। अल्लाह ने लफ्ज़ तखफ नहीं फरमाया, फरमाया ला तहज़न, गम न खा। गम औरों का हुआ करता है, खौफ अपनी जात का हुआ करता है। गम ला तखफ नहीं फरमाया कि अबू बकर खौफ न खा, खौफ अपनी नफ्स का हुआ करता है। और माँ बाप को अगर नौजवान बेटा कोई नुकसान में आ जाए या वो फौत हो जाए तो गम हुआ करता है। खौफ होता है या गम होता है? बोलो। नुकसान का अंदेशा हो तो गम का अंदेशा होता है, और गम किसी और से रिलेटेड होता है। बच्चों के साथ जिन जिन चीजों से मोहब्बत होती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मुख्तसर करता हूं, मुझे पता है कि आपका वक्त ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन आपने शान सिद्दीक़ अकबर की बाबत में सुना, ला तहज़न, अल्लाह ने फरमाया गम किसका? गम किसका? जोर से कहो। उन्हें अपनी जान की फिक्र थी या रसूलुल्लाह की? ये कहा था और ये बात भी ज़हर की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जान 1000 बन जाए, सिद्दीक को नुकसान पहुंचने पे दीन पे कुछ आंच नहीं आएगी कि आपको नुकसान न पहुंचे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मोहब्बत की बाबत में बता रहा हूं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुसरे रसूल हैं, जिन्होंने अपनी बेटी आयशा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया। किस वक्त? जबकि खदीजतुल कुबरा फौत हो चुकी थी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शान की बात करना चाहता हूं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या शान थी, क्या मकाम था। कोई गज़वा ऐसा नहीं, 27 गज़वात हैं, उनमें से एक गज़वे में भी आपकी गैर हाजिरी नहीं है। हर जगह पर सफर में, हजर में रसूलुल्लाह के साथ हैं। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलालत में थे, जिस वक्त बीमार हुए, आपको बुखार आया, तो उस वक्त नमाज अजान हो चुकी थी, सफों में इंतजार था कि किस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाएंगे। हत्ता के हजरत बिलाल को आवाज देनी पड़ी, अस्सलात अस्सलात अस्सलात, नमाज का वक्त जाने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मुर्रु अबा बकर फलयुसल्लिन्नास, अबू बकर को हुक्म कर दो कि मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर सहाबा की इमामत फरमाए। किसकी इमामत करे? सहाबा की। मैं क्या खूबसूरत मंजर बताऊं। उसमें हजूर ने नमाज की हालत में अपने पर्दे को हटाया, चेहरा चमक रहा था खुशी से कि देखा कि पीछे अब्बास भी खड़े हैं, उमर भी खड़े हैं, उस्मान भी खड़े हैं, बड़े बड़े सहाबा खड़े हैं, मेरा यार इमामत करा रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कैसे बताऊं आपको और किस तरह से बताऊं।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में आपको अपने मुसल्ले पर ठहरा दिया था। फिर एक दफा एक नमाज नहीं पढ़ाई, कई नमाजें पढ़ाई। फिर अली को बुलाया, अब्बास को बुलाया और हालत नमाज में उनके कंधों पर हाथ रखकर मस्जिद में क्यों तशरीफ लाए? देखना चाहते थे कि इमामत में मैं तस्दीक कर दूं कि जैसे मैंने हुक्म किया था वैसे अपनी आंखों से पा रहा हूं। जब आगे बढ़े रौनक हजूर की होती थी, जब आते थे खुशबू आ जाती थी, आपकी रोशनी होती थी। वो तो खुद अज़वाज मुतहरात कहती हैं घर में अगर सुई भी गिरी हो तो रसूलुल्लाह आते थे तो वो भी नजर आ जाते थे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हजूर जब उस हालत में आए, सिद्दीक अकबर पीछे हटने लगे। आपने फरमाया पीछे मत हट, इमामत कायम रख। लेकिन आप उसके किस तरफ बैठे बताओ? बाएं तरफ। किस तरफ बैठे? सिद्दीक किस तरफ था? हमेशा दो आदमियों की अगर जमात हो तो इमाम किस तरफ हुआ करता है? फिर बताओ। और मुक्तदी, ये तसव्वुर कहां से लिया? कैसे कि फरमाया हालत नमाज में आधी नमाज हो चुकी, अब आए जब तो फरमाया अब मैं तेरा इमाम हूं, तू मेरी उम्मत का इमाम है। इमामुल अंबिया सबके इमाम हुए। सिद्दीक, ये नमाज बड़ी प्यारी थी कि सिद्दीक रसूलुल्लाह की इमामत में और सहाबा सिद्दीक की इमामत में। कैसे, क्या पढ़ रहे थे? अल्लाह की नमाज पढ़ रहे थे। मेरे दोस्तों, वक्त नहीं कि मैं बयान करूं, जब रहलत नबी हुई किसी शख्स को यह जुर्रत नहीं होती थी कि उस सब चादर को जो के फरिश्तों ने आकर ओढ़ दी थी, इसको कौन हटाए। ये एक बड़ा वाक़या अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि चादर ओढ़ दी गई, अब किसी को जुर्रत न हुई। ये पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक थे जिन्होंने उस चादर को चेहरे अथर से जब हटाया तो उसमें वो नूर था कि बोसा दे के कहने लगे कि हयात से ज्यादा अल्लाह की मुलाकात में ज्यादा नूर बढ़ रहा है। वो नूर था, वो रोशनी और चमक और जमाल था। फिर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मशवरा दिया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कपड़ों की हालत में पानी ऊपर डाल दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल का हुक्म सिद्दीक अकबर के इन अल्फाज के साथ अमल में लाया गया था कि कपड़ों के साथ पानी बहाया गया था। फिर जब बात आई कि इनको कहां पर, तो सिद्दीक अकबर के इस फैसले पर कि जहां रसूल आराम फरमाते हैं वहां उनकी आराम गाह बनाई जाती है, क्योंकि हयात बरज़खी अंबिया कराम की ये इस पर हमारा अकीदा है कि शहीद जैसे इस दुनिया से रुखसत होने के बाद अल्लाह के यहाँ जिंदा है, नबी भी अपनी हयात बरज़खी में बोलो जिंदा है। रोज़े अक़दस पर सलाम जब करते हो तो रूह लौटती और कहते हैं वालेकुमुस्सलाम, अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं कैसे बताऊं आपको, यहाँ मकाम मुस्तफ़ा बयान करूं, ये सिद्दीक का मकाम बयान करूं। इतना अर्ज कर दूं कि हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत 2 साल और 7 माह थी। उस दौरान में आपने सबसे पहले हजरत उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को भेजा और वो रसूलुल्लाह की वसीयत पर भेजा था। फिर मानी ने ज़कात के खिलाफ जिहाद किया, मुसलमा कज़्ज़ाब को जहन्नम रसीद किया। और ये बता देना चाहता हूं कि सिद्दीक वो हैं जिसने खत्म नबूवत के मुनकरों के खिलाफ जिहाद किया। सिद्दीक वो हैं जिसने कुरान पाक के नुस्खे को महफूज फरमाकर उम्मत पर एहसान किया। लोग कहते हैं कि सिद्दीक ने कुरान में कमी पेशी कर दी थी, उस्मान ने उसमें कमी पेशी कर दी थी, तुम अली पर इल्जाम लगाते हो। उस वक्त तो कुरान सहाबा के सीनों में महफूज था। अगर किताबी शक्ल में जरा सी भी लफ्ज़िश होती तो अली मुर्तजा जैसे पढ़ते थे वो लिख कर देते थे कि ये कुरान है। यहाँ ये बता दूं कि ये साबित है कि जो अबू बकर सिद्दीक ने हजरत ज़ैद बिन साबित की उस लजना बनाकर कुरान को उनको एक किताबी शक्ल दिलाई थी, अगर उस किताब पे शक होता तो अली आवाज उठाते, उस कुरान पे अगर शक होता हुसैन आवाज उठाते, उस कुरान पे अगर शक होता हसन आवाज उठाते। 1,44,000 सहाबा कराम उस वक्त जिंदा थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो कुरान जमा किया वो खुदा की हिफाजत के साथ क़यामत तक हमेशा कायम रहेगा। ऐसे मुनकर खत्म नबूवत का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकार करता है तो वो इस्लाम से, और अगर कोई सहाबा के ईमान का इनकार करता है तो वो भी इस्लाम से। मेरे दोस्तों, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक के हाथ पे बैत करने वाले
عمر फारूक थे, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ कान बादी नबिय्यन लकान उमर। हर जुमे इंशाअल्लाह, आज पहला नंबर सिद्दीक अकबर का बयान किया है, अगला अदालत फारूक बयान करूंगा, फिर सहाबत उस्मान लाऊंगा, फिर शुजाअत अली लाऊंगा, फिर जर्नैल सहाबा की तारीख बताऊंगा, और ये साल हमारा सहाबा के साथ चलेगा इंशाअल्लाह। ये आज़म कर लें मेरे दोस्तों। एक बात जहन में रख लें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई तो 113 सहाबा, जब बदर में आए तो 300, जब हिजरत में आए तो 115, और जब बदर में आए तो कितने? 300, 313। जब ओहद में आए तो कितने? 1000 निकले, और 300 मुनाफिक उसमें से, और कितने रह गए? 700। और जब खंदक खोद रहे थे तो कितने? मैं पीछे बुलाना चाहता हूँ, आप बताओ है? 3000। कितने? और जिस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौके पर मदीना से फौज लेकर अपना हथियार, तलवार, नेजा, ये सारी चीजें, दावत और तबलीग में ये सारी चीजें हथियार मोमिन का लिबास हुआ करता है, जब लेकर उठे और पहुंचे मक्का पे, उस वक्त कितनी तादाद थी? 10,000। कितनी थी? और फिर जब मक्का फतह हो गया तो 2000 और मुसलमान वहां हो गए, तो कितने हो गए? फिर तैफ पर ग़ज़वा हुनैन हुआ तो कितने थे? 12,000। फिर जब वापस मदीना लौटे, रोम थे और किसरा फारिस था, हजूर ने रोमियों के खिलाफ जिहाद किया था या नहीं? बोलो, कितने हजार सहाबा साथ थे? 40,000। कितने? कितने थे? 40,000। अब मैं नहीं जाना चाहता कि क्या क्या उसको पिलाया, हजूर ने अपनी उंगलियों से उनको पानी पिलाया। जब पानी खत्म हो गया, 40,000 थे, घोड़े भी थे, ऊंट भी थे, पानी खत्म हो गया, हजूर की खिदमत में बर्तन लाया गया। आपने फरमाया सहाबा क्या? कहा कि हम अल्लाह पर ऐसा यकीन रखते हैं कि वो एक है, हमें कोई शक नहीं, लेकिन पानी खत्म हो गया है, आप दुआ कीजिए। हजूर ने जब ईमान देख लिया सहाबा कितना पुख्ता है, ये नहीं कहा कहाँ है हमारा अल्लाह कि हमें पानी पिलाए। हाँ, तो आपने अपनी उंगलियों को उस प्याले में रखा तो 5 उंगलियों से चश्मे निकले या नहीं? कितने हजार सहाबा ने आपकी उंगलियों से पानी पिया? उनमें वो खुश नसीब ऊंट भी थे जो पी गए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कैसे बताऊं आपको। और फिर जब आप हज्जतुल विदा के मौके पर हज पर तशरीफ ले गए, उस वक्त सहाबा की कितनी तादाद थी? 70,000। कितनी थी? 70,000। अब बताऊं मैं आपको, जब रहलत नबी फरमाई और वो 70,000 का मजमा मीना से जिस वक्त रवां तवां हुआ, किस पैगाम के साथ? इस्लाम के पैगाम के साथ। और जब मदीने में ये खबर पहुंची, मदीना से उन इलाकों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए। और जब मदीने में ये खबर पहुंची, मदीना से उन इलाकों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए, तो जब सहाबा इकट्ठे हुए तो